सुप्रभात सभी लोगों को। आशा करता हूँ कि आप सब खुश हो, अच्छी हो। तो फिर इस वीडियो में हम 41 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विल बी डिस्कसिंग अबाउट द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्टेटमेंट्स एंड व्हाट आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हिच इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दैट एंड व्हाई इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट यू might be having their display here itself. So let me, without wasting any time, let me have an explanation about that. So consider the following statement about chief of defense staff. We should have to consider, according to that we should have to come with an answer that which of the following statement is correct statement about that question. So without wasting that, so let me have a first explanation for you. So पहला स्टेटमेंट क्या लिखा गया है, पहला स्टेटमेंट में क्या दर्शा गया है. So Chief of Defence Staff will assure coordination in joint operation. ये मेन थीम है. अगर आप URI देखे हो तो आप एक बहुत अच्छा इंटेंशन लेके, बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन लेके आपको उस वीडियो में दर्शा गया है या फिर उस फिल्म में दर्शा गया है कि कैसे एक जॉइंट ऑपरेशन में कैसा उनका हाथ रहता है, कोऑर्डिनेशन रहता है CDS का. सो वो भी इसमें दिखा गया है कि एंड की इन ऑपरेशन रोल एंड मिलिट्री कमांड. So military command, operation and different kinds of strategy, functionality and different kinds of implementation करने में उनका हाथ रहता है. किसका? मेरा या फिर तुम्हारा? उनका है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का. तो पहला नंबर ऑप्शन क्या है यार? वो राइट ऑप्शन है. So which is the first number option, which is right option. Okay, let me quickly move to the second number option. CDS will also held the Department of Military Affairs. Okay, CDS will also head the Department of Military Affairs created within the Ministry of Defense. So Ministry of Defense के दौरान Department of Military Affairs का भी उनका क्या होता है, एक योगदान रहता है. ठीक है, तो फिर आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि सेकेंड नंबर ऑप्शन भी राइट ऑप्शन है. तो थर्ड नंबर ऑप्शन राइट है या फिर रॉन्ग है वो हम डिस्कस करेंगे. तो थर्ड नंबर ऑप्शन में क्या दिया है कि CDS will not be eligible to hold any government office after demitting the as a CDS. So CDS पोस्ट से अगर बाहर हो गए तो फिर उनका एलिजिबल नहीं रहता है कि ऑपरेशन में उनका योगदान रहे. ठीक है, वही इसमें दिया गया है. तो फिर आप देख सकते हो आंसर 1, 2 एंड 3 आर द राइट आंसर या फिर करेक्ट आंसर. और क्यों करेक्ट आंसर है हम इसमें डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, तो फिर द मेन रोल ऑफ CDS विल बी टू एंश्योर द कोऑर्डिनेशन इन जॉइंट ऑपरेशन. ओके, he will not have operational role and military command. So operation role and military command उनके पास नहीं रहता है. he will not have operational role, लेकिन soldiers के पास वो रहता है. ठीक है, मीन्स ऑपरेशन में अपना मीन्स फिजिकली रहना, इम्प्लीमेंटेशन या फिर फंक्शनैलिटी एंड प्लानिंग उनका रहता है, लेकिन फिजिकली अवेलेबिलिटी उनका नहीं रहता है. वही आपको ध्यान में रखना चाहिए. उसके बाद द चीफ डिफेंस स्टाफ विल आल्सो हेड द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स. ओके, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है. ठीक है, उसके बाद CDS विल नॉट बी एलिजिबल टू होल्ड एनी गवर्नमेंट ऑफिस आफ्टर डिमिटिंग द ऑफिस ऑफ CDS. सो अगर एक बार आप रिजाइन दे दिया, फिर निकल गए अपने पोस्ट से, तो फिर उनका अपना कुछ रोल नहीं रहता है उसमें. ठीक है, you will not be having any role to take an operational lead in that post. So I hope that you are understanding what I am saying. Usually whenever you are out from the role, then there is no use of getting different kinds of attention from the soldiers who are been planning for any operation. So that's the thing which you have to understand, right? So if you once you get out from the post, then you should not having any functionality role. So first thing you have noted that the CDS will have an operational role in different operations. Second thing, it has been authenticated or been functional or been taken over by whom? Ministry of Defense. Okay, in the affairs of Department of Military Affairs. Okay, that's the thing you should have to know that. So then after you also have to know that first number, second number, third option which is being given are the right answer for the above given question on Chief of Defense Staff. Okay, so let me quickly move for the additional information part itself, so that you will be having an explanation and understanding about what I am saying. तो बाप
अरे इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दिए सर, ठीक है, वो बहुत अच्छा मीन्स आपको पॉइंट वाइज इसमें दिया हूँ मैं, तो फिर आशा करता हूँ कि आपको सब समझ आ रहा है. आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग. सो लेट मी विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट मी हैव एन give an idea about what it is. So General Bipin Rawat, okay, General Bipin Rawat was appointed as India's first Chief of Defence Staff. Okay, फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसको दिया गया है? वो है बिपिन रावत को, जो कि ऑपरेशनल इन लीड के माध्यम से भी हम जानने चाहते हैं. The post of defense staff was created to provide effective leadership in the top level. टॉप लेवल में effective leadership को क्रिएट करने के लिए ये पोस्ट का क्या हुआ? ये पोस्ट का इन्वेंशन मीन्स क्रिएशन हुआ. टू द 3 विंग ऑफ आर्म्ड फोर्स मीन्स ये एक CDS 3 विंग्स का ऑथेंटिकेशन लेगा या फिर फंक्शनैलिटी अपने हाथ में लेगा. पहला है क्या है हम जानते हैं, वो है एयरफोर्स है, सॉरी इंडियन नेवी, एयरफोर्स एंड मिलिट्री या फिर सोल्जर. सो वो तीनों का तीनों किसके अंडर रहता है? जो कि CDS के अंडर रहता है, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अंडर ही रहता है. लेकिन हमको वो CDS किसके गवर्नमेंट ऑफ अफेयर्स में आता है? वो है डिपार्टमेंट ऑफ, ठीक है, तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स DOMA के अंडर वो आता है. ठीक है, जो कि जो भी फंक्शनैलिटी लेते हैं. वॉज क्रिएटेड इन द 5th डिपार्टमेंट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. ओके, वो किसके अंडर क्रिएशन हुआ? वो है 5th डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर वो क्रिएट हुआ. Establishment of CDS is to step the direction of fulfilling the long pending reform in Indian Armed Force. ठीक है, तो फिर लॉन्ग फुलफिलिंग द लॉन्ग पेंडिंग रिफॉर्म के लिए ही वो क्या हुआ? एस्टैब्लिशमेंट हुआ. किसका? CDS का. ठीक है, यूजुअली CDS का एस्टैब्लिशमेंट लॉन्ग फुलफिलमेंट के लिए ही हुआ था. ठीक है, लॉन्ग फुलफिलमेंट या फिर लॉन्ग पेंडिंग रिफॉर्म के लिए ही हुआ था. किस अंडर? या फिर इंडियन आर्म्ड फोर्स के अंडर. ठीक है, इंडियन आर्म्ड फोर्स के अंडर ये हुआ था. इट वॉज रिकमेंडेड बाय हुम? कारगिल रिव्यू कमिटी. ओके, जो कि 2001 में कारगिल रिव्यू कमिटी के अंडर ही बिपिन रावत को डिफेंस स्टाफ का एक चीफ मोस्ट पोस्ट दिया गया है. एंड रिप्रेजेंटेड बाय द नरेश चंद्र कमिटी इन 2012. ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कौन कौन सा कमिटी उनका रिफॉर्म के या फिर देखभाल किया है. वो है कारगिल रिव्यू कमिटी, दूसरा है नरेश चंद्र कमिटी जो कि 2012 का अंडर हुआ था. तो रोल ऑफ CDS नाउ हम पढ़ेंगे एक स्पेसिफाइड रोल क्या होता है CDS का. What are the different roles usually which has been given to a CDS? So first thing is CDS as a permanent chairperson या फिर chairman of the chief of staff committee which will also have 3 service chief as member. वो आपको ध्यान में रखना चाहिए, तीनों का सर्विस इसके अंडर होता है, नेवी, इंडियन एयरफोर्स, उसके बाद इंडियन आर्मी. सो हिज कोर फंक्शन will be the foster greater operational synergy between the 3 services branches in the Indian military and keep inter-service friction to a minimum. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हर एक फंक्शन, कोर फंक्शन जिसके अंडर होता है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अंडर होता है विथ मिनिमम इंटर सर्विस फ्रिक्शन. विथ मीन्स हर एक का एक योगदान रहता है. मीन्स हमको ये चाहिए कि फंक्शनलिटी हमको ज़्यादा चाहिए लेकिन डिमांड कम. ठीक है, तो फिर उसमें क्या होता है कि एक अच्छा सा योगदान बढ़ता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज यूजिंग one bed which is extra large, then why cannot another can occupy in the same bed? Are you understanding what I am saying? So it is how we should have to minimize in the force of operational guns, in the force of defense kinds of military equipments, right? That's the thing which we have, which on his under on the CDS under it has been allocated or which has been evaluated. That's the thing we should have to understand. Okay, so then after he will also head the newly created department of military affairs. So जो कि military affairs का न्यू क्रिएशन हुआ वो भी उसके अंडर ही होता था. In the Ministry of Defense, the CDS will be single point military advisor to the defense minister. Okay, एक एडवाइजर के माध्यम से
डिफेंस मिनिस्टर को एडवाइस देगा कौन, CDS, ऑन मैटरिंग इन्वॉल्विंग ऑल 3 सर्विसेज। ऑल 3 सर्विस में जो भी मैटर्स इन्वॉल्व हुआ है वो सारा इन्वॉल्वमेंट किसके अंडर वो देगा, वो है डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री के अंडर देगा, ठीक है। As a head of DOMA, means Defense of Military Affairs, CDA is vested to authority of prioritizing inter-service procurement decision to permanent chairperson, chief and staff committee। जो कि स्टाफ कमिटी होते हैं, चेयरपर्सन्स होते हैं, चेयरमैन्स होते हैं, वो सारा उनके अंडर या फिर उनका एक योगदान बनता है कि वो सारा इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करे। किसको, वो है हेड ऑफ, एज ए हेड ऑफ DOMO CDS इज वेस्टेड विद द अथॉरिटी, मीन्स हर एक स्टेप का वो देखभाल करना है उनको, और जो भी देखभाल करते हैं हर एक रिपोर्ट उनको सबमिट करना है एक हायर अथॉरिटीज़ को, जो कि हम जानते हैं चीफ ऑफ डिफेंस, जो कि होते हैं मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। अब कौन है, राजनाथ सिंह का, ठीक है, वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो फिर यही है रोल ऑफ CDS। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। सो CDS का बहुत अच्छा रोल रहता है, या फिर जो कि फर्स्ट CDS अपॉइंटेड इज बिपिन रावत, वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, जनरल बिपिन रावत, सॉरी। सो दीज आर द थिंग्स फॉर यू इन द एडिशनल इंफॉर्मेशन पार्ट अबाउट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सो आई होप दैट यू हैव गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।